So we will start next part in current electricity. In last class, we will discuss, I think, up to resistivity, conductivity, resistance, conductance, effect of temperature on resistance and resistivity, conductance, conductivity. With increasing temperature, resistance increase, resistivity increase, and conductivity and conductance decrease. That is in conductor, in metal. Okay. So next part in this chapter, that is combination of resistance, combination of resistance. We have two kind of combination. One is series combination and another one is parallel combination. So series combination, and second one is parallel combination. In series combination, all resistance will be connected in the series. So in series combination, current through each resistor will same, and potential difference across each resistor will be different. Potential difference डिफरेंट होगा, करंट क्या होगा, सेम होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीरीज रेजिस्टेंस की बात करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं. सीरीज कॉम्बिनेशन. So in series combination, let n resistance of resistor of resistance R1, R2, dash dash dash, Rn, R1, R2, R3, Rn are connected in series with the power supply of voltage V. When battery is connected to the circuit, current I flow through the circuit. So same current flow through each resistor. Now potential difference across this one, V1, across this one, V2, across this one, V3, across this one, Vn. Vn. So what is the total potential? V equal to sum of all individual potential, sum of each potential or not? So if we discuss that if equivalent resistance is R1, equivalent resistance is R1, then क्या होगा? RS, equivalent is RS, not R1. Equivalent resistance is RS. So V equal to I into RS. V equal to I into RS. In resistance R1, in R1 resistance, R1 में क्या होगा कनुप्रिया? V1 equal to I into होगा, करंट तो सेम है सब में. इन रेजिस्टेंस R2, R2 में क्या होगा? V2 equal to I into R2. Similarly, in Rn क्या होगा? Vn equal to I into Rn. I into Rn. तो अब यहाँ पे देखिए, तो टोटल वोल्टेज अपने पास होगा V. हमने अलग अलग वोल्टेज निकाल लिया. तो व्हाट इज दी V इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज V1 प्लस V2 डैश 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 Vn.
So what is the V? V equal to, I into RS. I into equal to I R1 plus I R2 dash 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 I into Rn. So I into Rs equal to, can we take I common? R1 plus R2 dash 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 Rn. I से I कैंसिल, तो Rs इक्वल टू क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 डैश 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 Rn. कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं. अगर मैं बोल दूं कि ऑल रजिस्टेंस, ऑल रजिस्टर है सेम रेजिस्टेंस, ऑल रजिस्टर हैज सेम रेजिस्टेंस, देन R इक्वल टू क्या होगा? Rs इक्वल टू R प्लस R डैश 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 एन टाइम. जब आप किसी भी नंबर को एन टाइम मल्टीप्लाई करो तो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Rs इक्वल टू एन आर. इसका मतलब इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी मोर देन द मिनिमम मैक्सिमम रेजिस्टेंस यूज इन सर्किट. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस will be more than maximum resistance used in circuit. Okay, in equivalent resistor, and one more thing, current in each resistor will be same. Potential difference across each resistor will be different. Okay, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं सीरीज में. दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन. In parallel combination, resistors are connected in parallel to each other. So in parallel, voltage across each resistance will be same, but current in each resistance will be different or not? R1, R2, R3, Rn. These are connected with the battery of voltage V. Okay, so current through each resistor will be different. Let I1, I2, I3, In. So what is the total current through the circuit I? That is equal to sum of each current. I equal to I1 plus I2 dash 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 In. So now, if equivalent resistance is Rp, then इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rp है तो क्या होगा? V इक्वल टू I इंटू Rp. So what is the I? I equal to V upon Rp. Okay, in resistor R1 में करंट कितना होगा? I1 इक्वल टू वोल्टेज दैट इज V, क्योंकि वोल्टेज सब में क्या है? सेम है, जो बैटरी का वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो. V अपॉन R1. इन रजिस्टर R2 में क्या होगा? I2 इक्वल टू V अपॉन R2. सिमिलरली इन Rn में क्या हो जाएगा? In इक्वल टू V अपॉन Rn. So what is the total current? I equal to I1 plus I2 dash 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 In. So what is the I? I equal to V upon Rp equal to V upon R1 plus V upon R2 dash 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 V upon Rn. So V upon Rp equal to
V कॉमन ले लें, 1/R1 प्लस 1/R2 डैश 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 1/Rn। V से V क्या हो गया, 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/Rn। अगर हर एक रजिस्टेंस क्या है, सेम है, तो क्या होगा, आरपी, हर एक रजिस्टर क्या है, सेम है, तो आरपी क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। तो इफ ईच रजिस्टर आर इक्वल, देन अगर हर एक रजिस्टर इक्वल है तो क्या होगा, 1/Rp इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, कितने टाइम्स हुआ, n टाइम्स, हुआ कि नहीं हुआ। तो 1/Rp इक्वल टू कितना होगा, n/R, तो Rp इक्वल टू कितना हो जाएगा, R/n। हमने क्या पढ़ा था अभी, RS इक्वल टू क्या था, सामने दिख रहा होगा आपको, RS इक्वल टू NR, और Rp इक्वल टू R/n। So in parallel combination, equivalent resistance will be less than the minimum resistance used in the circuit. In series combination, equivalent resistance will be more than the maximum resistance used in the circuit. In series combination, current through each resistor will be same, and in parallel combination, voltage across each resistor will be same. In series combination, potential difference across each resistor will be different, and in parallel combination, current through each resistor will be different. ये चीजें याद हो जाएगी अच्छे से, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये आपका दो कॉम्बिनेशन हो गया, कौन कौन सा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, अगला टॉपिक क्या बताइए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्किट्स में दो लॉ अपने पास होते हैं, दो लॉ होते हैं, किरचॉफ लॉ जिसको बोला जाता है, किरचॉफ, क्या होता है किरचॉफ लॉ पता है। दो लॉ हम लोग पढ़ते हैं, केसीएल, फर्स्ट लॉ इज जंक्शन लॉ, और इट इज नोन एज करंट लॉ, और इट इज जंक्शन और करंट लॉ बोल सकते हैं, और किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, फर्स्ट लॉ बोल सकते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है फर्स्ट लॉ का, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट लॉ, प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, एट एनी जंक्शन सम ऑफ ऑल करंट विल बी जीरो, सम ऑफ ऑल करंट विल बी जीरो। दैट मीन्स व्हाट, if you find any junction in electric circuit, net current at that junction will be zero. That means current incoming to that junction will be equal to current outgoing from the junction. So we can say I1 plus I2 dash it equal to I3. Okay, this thing is clear or not, ठीक है। सेकेंड लो, सेकेंड लो, और इसको बोलते हैं लूप लो। क्या बोलेंगे, लूप लो या वोल्टेज लो।
अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, या इसका प्रिंसिपल देख लीजिए पहले, क्या है इसका प्रिंसिपल? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एट इन एनी क्लोज लूप, in any closed loop sum of total voltage will be zero. Sum of total voltage will be zero. It means total EMF applied by the batteries, total EMF applied by the batteries will equal to voltage drop in resistors, voltage drop in resistors or devices. ओके, सो कोई भी सर्किट है आपके पास, ऐसा सर्किट है मान लीजिए जिसके अंदर रेजिस्टेंस है R, ठीक है, और आपकी बैटरी लगी है ईएमएफ की कितनी, ई की। तो हम लोग नॉर्मली करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, आई, तो हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा आई इंटू आर। ये तो सबसे बेसिक इसकी डेफिनेशन हो गई कि सम ऑफ टोटल वोल्टेज ऑफ बैटरीज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप इन दी रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप इनटू रेजिस्टेंस। ये तो एक सिंपल सर्किट हो गया। अब कई बार अपने पास लूप बनाना होता है, लूप के अंदर इक्वेशन बनानी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट लॉ दैट इज जंक्शन लॉ मींस सम ऑफ ऑल करंट एट एनी जंक्शन विल बी जीरो। लूप लॉ मींस सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन एनी क्लोज लूप विल बी जीरो। अब यहाँ पे लूप बना के सोल्व कैसे करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लूप में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्शन कैसे लेते हैं, किसकी डायरेक्शन प्लस लें, बैटरी की डायरेक्शन प्लस लें, रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको प्लस लें या माइनस लें, वहां बड़ी प्रॉब्लम होती है। और लूप को कैसे डिसाइड करें, लूप को कैसे डिसाइड करें, तो मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया। लूप डिसाइड करने के लिए आपको कुछ नहीं सोचना है, अपनी मर्जी से ऐसे ही कुछ गोला बना दीजिए, इस सर्किट के अंदर पूरा होना चाहिए। लूप ऐसा लेना जहाँ क्लोज होना चाहिए, ऐसा नहीं है लूप के अंदर कहीं से साइड से करंट लीकेज, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पूरा लूप क्या बनना चाहिए, क्लोज लूप बनना चाहिए। जैसे लूप बन रहा है उसके अंदर आप मर्जी से ऐसे बना दो चाहे ऐसे बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने जो लूप ड्रॉ किया है उस लूप के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। अब लूप में कैलकुलेशन कैसे करेंगे, लूप में कैलकुलेशन करते टाइम ध्यान रखना, अगर आपको बैटरी का साइन डिसाइड करना है, किसका साइन डिसाइड करना है, बैटरी का। अगर लूप आपका बैटरी के पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, लूप अगर बैटरी के पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है तो क्या होगा, बैटरी का साइन आपको पॉजिटिव लेना है, बैटरी का वोल्टेज क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। समझ में आ गई बात। अगर लूप बैटरी के नेगेटिव से निकलना है तो बैटरी का साइन आपको नेगेटिव लेना है। सिंपल है, पॉजिटिव से तो पॉजिटिव, नेगेटिव से तो नेगेटिव। अब दिक्कत आती है कि वोल्टेज जो डिफरेंस आ रहा है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसका साइन हम लोग कैसे लें। तो उसका लेने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, वो कैसे लोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको करंट की डायरेक्शन देखनी है कि आपने करंट की डायरेक्शन कैसे ले रखी है। वो भी अपनी मर्जी से ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने करंट की डायरेक्शन उल्टी ले ली तो आपका करंट आंसर में क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पर वोल्टेज देखना है कि रेजिस्टेंस का क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है। तो क्या करोगे, करंट की डायरेक्शन देखोगे। अगर आपकी लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव लेना है। और करंट और लूप एक दूसरे क्या जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या लेना है, नेगेटिव लेना। इतना सा ध्यान रखना, आपका कोई भी हार्ड से हार्ड सर्किट क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक लूप बनाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, उसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, एक रेजिस्टेंस है R1, एक बैटरी है E1 जिसका पोटेंशियल है, इसको एक दूसरे रेजिस्टेंस R2 और एक और बैटरी यहाँ पे लगा रखी है E2, और एक और नीचे अपन बैटरी लगा देते हैं जिसका रेजिस्टेंस अलग है, बैटरी अलग है, और एक रेजिस्टेंस इसमें और लगा देते हैं हम लोग। ये अपना सर्किट बना, ये R1 है, ये E1 है, ये R2 है, ये E2 है, ये R3 है, और ये E3 है। ठीक है, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन बनानी था, आप अपनी मर्जी से करंट की डायरेक्शन बना सकते हो। कौन बनाएगा, बनाना चाहते हो कोई यहाँ पे आके बना दीजिए, किसी को बनानी है तो आजा आजा बना दे, अपनी मर्जी से करंट की डायरेक्शन बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, तुम बनाए खुद ही, करंट की डायरेक्शन अपनी मर्जी से बना दे, लूप की डायरेक्शन अपनी मर्जी से बना दे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ठीक है, करंट की डायरेक्शन शो करनी है इसमें और लूप दोनों शो करने हैं। सॉल्व अपना आप कर लेंगे हम लोग इसको, केवल कुछ भी सोचना नहीं है, अपनी मर्जी से जैसा लूप बनाना वैसा लूप बनाओ, वैसा करंट बनाना वैसे करंट बनाओ। हम्म
चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने करंट की डायरेक्शन में बना दी और लूप की डायरेक्शन में बना दी। इसको हम लोग ले लेते हैं लूप 1, इसको ले लेते हैं लूप 2। ठीक है। अब यहां से इसने करंट की डायरेक्शन ऊपर जो लूप में दिखा रही है उसको हम लोग मान लेते हैं कितनी करंट है, I1। इसने जो करंट दिखाई यहाँ पे कितनी है, I2 ले लेता है सेकेंड पार्ट के अंदर, और इसके अंदर जो करंट इसने शो की है वो कितनी है, I3। अब ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे तीनों करंट एक ही साथ आ रही है, सर क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, इसने बनाई है। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक की वैल्यू अपने आप क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। हो सकता है दो की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। उसमें डिपेंडेंसी रहती है, उसमें फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो आपके पास क्या होगा, सबसे पहले हम जंक्शन पे लेंगे, इस जंक्शन में तीनों करंट आ रही है यहाँ पे, तो इन तीनों करंट का सम कितना होगा, सबसे पहले ये लिख देंगे जंक्शन के अकॉर्डिंग। ये अपनी एक इक्वेशन बन गई, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास तीन करंट है, थ्री करंट से नहीं है, तो थ्री इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन ये बन गई किसके अकॉर्डिंग, जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग। दूसरी इक्वेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, लूप के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब इसने पहला लूप ऐसा बनाया, लूप ऐसा चल रहा मान लीजिए, ये वाला लेते हैं ना, लूप ऐसा चल रहा नहीं चल रहा बताओ इसके अंदर, और नीचे वाली देखें जिसमें ऐसा चल रहा लूप, भाई इसी लूप को ऊपर वाला लूप देखें तो इस ऊपर वाले ब्रांच के अंदर लूप ऐसे जा रहा है, और नीचे वाले ब्रांच में लूप कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा बताओ। जब पहले देखे हम लोग इसके बैटरी के पॉजिटिव से लूप निकल रहा नहीं निकल रहा बताओ, बैटरी के पॉजिटिव से लूप निकल रहे हैं, तो इसका मतलब E1 क्या लेंगे, पॉजिटिव। फिर आते हैं इसमें लूप कहां से निकल रहा है, बैटरी के नेगेटिव से निकल रहा है। देखो E2 में ये जो लूप, इस ब्रांच के अंदर जो लूप जा रहा है ऐसे, इधर है कि नहीं है, तो अपने पास ये नेगेटिव में क्या लिखोगे, माइनस का E2 इक्वल टू, अब लाना है वोल्टेज का, रेजिस्टेंस का क्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है। इसमें देखो करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो क्या लेंगे, I1 R1 प्लस का लेंगे। इसमें देखो क्या है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, लूप की डायरेक्शन अपोजिट में है कि नहीं है, तो क्या होगा इसमें माइनस I2 R2 हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब अपने पास अगर इसमें देखें नीचे वाले में, तो देखो इसकी ब्रांच में इसने लूप जो बनाया, इसमें ब्रांच इस डायरेक्शन में लूप है, और इस नीचे वाले ब्रांच में कौन सा लूप है, इस डायरेक्शन में लूप है कि नहीं है बताओ, ऐसा ही लूप है। अब देखो अगर यहां पे देखें E2 किसमें, अब यहां पे E2 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव से लूप क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो E2 पॉजिटिव आएगा। यहां पे बैटरी के नेगेटिव से लूप रहा है, तो माइनस का क्या आएगा, E3 इक्वल टू क्या होगा, इसमें देखो करंट की डायरेक्शन और रेजिस्टेंस दोनों क्या है, इसमें सेम है, तो क्या लिखोगे आप इसमें, I2 R2। फिर यहां पे देखो लूप की डायरेक्शन करंट डायरेक्शन दूसरे क्या है, अपोजिट है, तो माइनस I3 R3, इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 3। अब ये वैल्यूज अपने पास आ गई, यही आपको सॉल्व करना होता मेनली। तो अब अगर इसमें कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं हम लोग और उसका अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो आप लोग। बताइए E1 कितना लूं मैं, कितना लूं, 2 वोल्ट ले लिया। E2 कितना लूं, है 1 वोल्ट ले लिया। E3 कितना लूं, 4 वोल्ट ले लिया। R1 कितना है, R1 कितना लूं, 1 ओम। R2 2 ओम। R3, अच्छा ये वाला रेजिस्टेंस, सॉरी, तो इसमें भी देख लो ये क्या आएगा अनुपात, इसको R4 लिख दूं मैं इसको, तो ये इसी में लगेगा लूप 2 में, करंट और लूप एक दूसरे के अपोजिट, तो I4 सॉरी I3 R4, I3 R4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो इसकी वैल्यू कितनी लूं मैं, एक ले ली हमने 1, दूसरा 2, इसको 3 ले लूं, और इसको 4, ये लो। अब सिंपल क्या करनी है, सब में वैल्यू पुट करनी है, तो कैसे इसमें पुट करोगे, E1 माइनस E2, E1 कितना बेटा 2 माइनस 1 इक्वल टू I1, I1 तो I1 लिखेंगे, R1 कितना है 1, माइनस I2 को I2 लिखेंगे, R2 कितना बेटा 2। तो अपने पास इक्वेशन क्या बन गई, 1 इक्वल टू I1 माइनस 2 I2, इक्वेशन नंबर, इसको 4 दे दो एक बार, दे सकते हो नहीं दे सकते हो, दे सकते हो। फिर इसमें वैल्यू डालेंगे, E2 कितना है 1, E3 कितना है 4 वोल्ट, तो माइनस का 4 इक्वल टू I2 कितना है, I2 को I2 रहने देंगे, R2 कितना है 2, माइनस I3 कितना, I3 को I3, R3 को 3, और माइनस I3 और ये 4। तो यहां पे इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, क्या बनी जल्दी बताओ,
तो यहाँ पे देखो बेटा, ये जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी -3 इक्वल टू 2i2 -7i3। ये बनी कि नहीं बनी? एक इक्वेशन अपने पास ये बन गई, इक्वेशन नंबर 5 दे दो। 5 है, 4 है और 1 है। आप दोनों में क्या रिप्लेस कर दो, या तो इसमें i3 को रिप्लेस कर दो i1 और i2 की फॉर्म में, तो अपने पास क्या आ जाएगा, i3 इक्वल टू -i1 -i2। तो इसको लिख दो -3 इक्वल टू 2i2 -7 और -i1 -i2। तो फाइनली क्या बनेगी, -3 इक्वल टू 2i2 प्लस 7i1 प्लस 7i2। सॉल्व करो, कितना अपने पास आएगा ये, तो -3 इक्वल टू 5 या 7i1 प्लस 5i2। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन आपके पास इक्वेशन 4 है। क्या कर सकते हैं, पहली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दे, जो 4 वाली इक्वेशन है इंटू क्या कर दो 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपने पास -3 इक्वल टू 7i1, पहले ये इक्वेशन 7 लिख रहा हूं, प्लस 5i2। ठीक है, इसके नीचे में क्या लिखूं, यहां पे ये लिख दूं, इसको 7 से मल्टीप्लाई करते, 7 इक्वल टू 7i1 और -14i2 माइनस माइनस प्लस। हाँ बोलो, ये माइनस था क्या, प्लस था क्या ऑलरेडी? अच्छा, यहाँ पे ये 2 है ना, तो ये 9 हो जाएगा ना यहाँ पे। तो अभी तो कुछ नहीं, इसको 9 कर दे। ठीक है, यहाँ कितना हो गया, माइनस का 10 और ये कैंसिल हो गया, दोनों प्लस के 9 और प्लस का 14 कितना हो गया बेटा, 23i2। तो i2 की वैल्यू कितनी आ गई उन पास, -10/23 आ गई है i2 की वैल्यू। अब क्या निकाल सकते हो आप, i1 निकाल सकते हो यहां से इस इक्वेशन का यूज करके, 1 इक्वल टू i1 -2 इंटू 10/23। तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 1 + 20/23। ये आ गया i1। तो i1 कितना आएगा 43/23 एम्पियर। इसके आगे एम्पियर लगाना। अब अपने पास कौन सी निकालनी, i3। i3 कितना हो जाएगा, इसके माइनस दोनों प्लस कर दो, तो -10/23 प्लस 43/23 और इस पूरे का आगे माइनस का आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो i3 इक्वल टू कितना होगा, -33/23। तो देखो अपना आप ही दो वैल्यू किसमें आ गई, नेगेटिव में। इसका मतलब क्या होता, ये जो डायरेक्शन हमने i3 की और i1 की जो ली है, नहीं i2 की, जो i3 और i2 है ना, वो डायरेक्शन दोनों एक दूसरे क्या होगी, जो हमने ली है वो सही नहीं है, वो क्या है, उसके अपोजिट है। पर क्वेश्चन सॉल्व करने में वो गलत है नहीं है। तो देखो लूप डिसाइड करने में, करंट की डायरेक्शन लेने में आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। अपने आप लूप बनाओ, अपने आप करंट की डायरेक्शन बनाओ। उसके बाद जब सोल्व करते हो उस टाइम पे ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में आपका लूप है, उसी डायरेक्शन से अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है तो बैटरी का वोल्टेज पॉजिटिव लेना है। जिस डायरेक्शन में लूप है उसी डायरेक्शन में करंट है तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज भी पॉजिटिव लेना है। अगर इसका अपोजिट है तो क्या ले लेना है, नेगेटिव। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।